क्या हो गया? हाँ बीबी, लोग ज्वाइन कर रहे शायद। अरे वाह सर, बैकग्राउंड चेंज उल्टा गेला है। उल्टा 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 क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं, गुड मॉर्निंग। थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए ना. तो आमचा ट्रेडिंग सेटअप आहे. That is our trading setup. सेंटर मध्ये हा लॅपटॉप असतो, मॅकबुक. ओके, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर द थिंग्स गोइंग ऑन? ऐसे वी ही आर गुड सब. मैम. ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एज रेगुलर प्रैक्टिस वी विल अंडरस्टैंड एवरीवन्स प्रॉब्लम फर्स्ट. कहाँ पे क्या Challenges क्या आ रहे हैं? We will discuss and have it as a open discussion. नोट करेंगे. आई विल नोट इट डाउन एंड I would like to address that every query. तो सबसे पहले आपके अपने क्या डिफिकल्टी आ रहे हैं ट्रेडिंग में, बताओ. या फिर आपको क्या जानना है? नॉट ओनली डिफिकल्टीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को डिफिकल्टी आती होगी. हाँ, किसी किसी को प्रॉब्लम लगेगा, अरे मुझे डिफिकल्टी नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, अटेंड करो कि नहीं. तो कहाँ पे अटक रहे हैं, क्या हो रहा है, या फिर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है आपको लग रही है. सो May I, ma'am? यस प्लीज. Ma'am, the main issue is about discipline. ओके. Not following my own rules. setup. ओके. And SL. एसएल, दैट इज ओनली डिसिप्लिन में ही आता है एसएल. Yes. ओके फाइन. एनीथिंग एल्स? I'll ask you. यस यस प्लीज. Please. Since the time I've been spoken to you last time, Mm-hmm. you had told me that 30 positive trades, then you can think of you can do good. Mm-hmm. After Perfect. that, first 2-3 days I did positive trades. Then again I started doing negative trades. Now my Mm-hmm. negative trades means when I see the trade later, after the trade is over, I see my entry was wrong. Mm-hmm. That is purely mistake. Means that mistake happens because of maybe FOMO, which we have been speaking on. So FOMO is a major issue for me because of my heavy losses. And currently, for last 2 weeks, 8 sessions, I'm consistently doing positive trades. Very After good. analyzing myself, where I'm going wrong and why mistakes are happening and why I'm aggressively doing a wrong trade. Mm-hmm. Because of FOMO, aggression comes and then the wrong trade happens basically. Perfect. I tried to avoid this for last 2 sessions, and today's sessions also, which is the 9th session, was positive again for me. Mm-hmm. Now, when I do this positive trades, again, what happens with me is the FOMO. That is, I miss the rally for good points. I come out of the rally with the fear कि जितना मिला है ले लेते हैं. So I Okay. put the wrong stop loss. My stop loss goes wrong in all my positive trades. Means today also I had taken a very good trade. Rather, whatever trades I've taken in last 9 sessions, all are very nice trades wherein I could have taken 100, 150 points also. Wherein I fall out in 10 and 15 points or 20 points or max 30 points. That is because of the fear. कि चलो loss है हुआ, so I'll just come out, I'm getting something, so just get out. And I put a wrong stop loss. That is my major problem, that stop loss is wrong. Mm-hmm. Okay. So for FOMO entry, I'll give you one good. We have learned it. Everybody know it, but still we tend to forget all those things. We will I'll tell you polish down how our. to avoid FOMO entries. Okay. First of all. Second thing is stop loss. Stop loss के लिए psychology कैसे रखना है? How we can
be in the trade, depending upon that, entirely depend upon whether you are into intraday trade or into a positional trade. Everything changes accordingly, Right. right? So we will touch upon that. Next. Thank you. Me, ma'am. Yes. Ma'am, I tend to book profits earlier on trending days. Okay. And that, And sometimes wait for a better what we can say Entry. profits. Yes, when it is not that much trending, I just Mhm. keep waiting. okay, fine. No problem. We will address that. Fine. Next. Madam, Come on. Yes, discipline बोलिए. is not a issue Hmm. or psychology is not a issue because of thanks to you both repeated telling. Mhm. So I have discipline too much. There's no issue. Only thing I want to, in the end, if the time permits, sir can explain ironfly versus butterfly Okay. in detail if time permits. Otherwise, next session. Hmm. Thank ठीक you. है. Next, No even problem. Thursday. It is related to the Technical. technical. Yeah, later. We Next will week. try Next to week. do it. Yeah, otherwise, Next Thursday session. Thursday. Next So Thursday. this- Next नहीं, अभी आने वाला है ना. अभी वो आने तो वाला क्या है? थर्सडे में आएगा फिर से। करेंगे क्या? हाँ, आज Tuesday है. नहीं, करेंगे ना. मुझे ये week ये वाला लास्ट सेशन मिस हो गया था ना सबका एक्चुअली. इनका ठीक। कजिन सिस्टर का ये हो गया तो वी हैड टू कैंसल इट. सो दैट्स व्हाई थर्सडे को नहीं हुआ. ओके. नेक्स्ट. व्हाट एल्स? कम ऑन नितिन, सागर. जया। यस जया. Madam, I have also the same problem. कभी सभी के कैमरा क्यों नहीं खुले? कैमरा खोलो यार. ऑन हेलो, करो. यस बोलो बोलो. कभी जल्दी निकल जाती हूँ और जिस दिन रुकती हूँ कि दिमाग में आता है जाएगा, उसी दिन ही वो लॉस खाती हूँ ज्यादा. तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है. सेम लाइक अपर्णा का. मोर और लेस सेम। सेम राइट. हाँ, मतलब बहुत जल्दी निकल जाती हूँ और जिस ट्रेंडिंग दिन डे में निकलती एग्जिट फास्ट और बाकी के दिन में आप रुक जाते हो. हाँ, जिस राइट. दिन रुकती हूँ उस दिन लॉस जाता है, जिस दिन नहीं रुकती हूँ उस दिन अच्छा प्रॉफिट, मतलब निकलने के बाद प्रॉफिट जाता है. हर ये स्टॉक भी में ना हम लोगों ने सीखा हुआ है बट अगेन बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी वी मिस इट. क्यों, कब रुकना चाहिए, कब निकल जाना चाहिए, मैंने इसको बहुत बार कवर किया है. स्टिल आई अगेन टेक इट टुडे. ओके. Madam, another thing. Today, I just going through two stocks, Nestle and IRCTC. So at last, can you discuss on both the stocks? Yeah, no problem. We will discuss. If Okay. time permits. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay, great. Next. मॅम मी. हाँ बोलिए. मॅम, पीचा ट्रेड व्यवस्थित घेतला जातो, एंट्री देखील व्यवस्थित असते आणि तो व्यवस्थितपणे कॅरी देखील मला करता येतो, एक्झिट देखील प्रॉपर होते. तितक्या व्यवस्थितपणे मला सीईचा ट्रेड नाही घेता येत. ओके. ओके. पीचा येतो पण सीचा येत नाही. ओके. मार्केट मध्ये एंट्री शॉर्ट मार्केट खाली जाताना झाली होती का? मे बी. नाही, ते मला साइडवेज होतं. आम्ही एंट्री केल्यानंतर तर कम्प्लीट मार्केट काहीच करत नव्हतं ऍक्च्युली. साइडवेज. ठीक, नो प्रॉब्लम. वो So, देखेंगे. सी पी का भी निकालना पड़ेगा. वो भी साइकोलॉजी के पे ही आता है. कब एंट्री हुई थी उस पे ज्यादा डिपेंड होता है. नेक्स्ट. नाही, ऍक्च्युली पी बऱ्यापैकी फास्ट आणि रिगरस राहतो आणि सी अडकत अडकत जातो. तो मला असं वाटतं जेव्हा तो थोडा खाली येतो तर तेव्हा मी बुक करून देते आणि नेक्स्ट 2-3 कॅनल्स तो फास्टपणे वर जातो. मग अशा प्रकारे मी जेव्हा केव्हा रॅली येते निफ्टी बँक निफ्टी मध्ये, मी मात्र लॉस मध्ये असते. ओके. फाईन फाईन. आय तसे कसे ओळखायचे की ट्रेंडिंग असेल का नाही, का हा ब्रेकआउट बरोबर आहे का नाही,
You want to know Hmm. that only, right? Whether to stay Yes, in yes. trade. If the breakout is right, then Hmm. you can sit in the trade. If breakout is not correct, then you have to exit. Yes. So we will take. I'll take that upon. Next. अरे सब कैमरा ऑन करो यार. राहुल क्या हो गया? लॉग आउट करके करता हूँ, लैपटॉप से नहीं होता है, फोन में हो रहा है, रुको। Okay. Okay, fine. Yes, मॅम Nitin. Yes, Sagar. मॅम ऍक्च्युली माझी एंट्री ना करेक्ट होती आणि मी प्रॉफिट मध्ये पण असतो, पण ऍक्च्युली मी जेव्हा ट्रेड बुक करतो मला ट्रेडिंग नाही करता येते. म्हणजे मी जेव्हा ट्रेड बुक करतो, सपोज एकदा पीई घेतला तर मी 1500 मध्ये बुक करून घेतो आणि आफ्टर दॅट आय चेक आफ्टर 1 hour इट विल शुड बी लाईक 5000 6000 इट शोइंग अ प्रॉफिट. Okay. आय एम नॉट Trading एबल stop टू loss. ट्रेड. Okay. ओव्हरऑल कसं आहे, म्हणजे प्रॉफिट मध्ये आहे का? प्रॉफिट मध्ये होतो. गुड. ठीक आहे. देन तुमचं म्हणजे ट्रेड मध्ये बरोबर ओळखून कंटिन्यू करणं. बरोबर होते. या Okay. That is that one we will address. That means trailing as well as same, more or less similar challenges. When to stick to the trade, when to jump out of the trade. ओके. एकनाथ, सेलिंग चालू आहे का काय चालू आहे? सध्या स्विंग चालू आहे. ओके, Okay, very good. व्हेरी गुड. पोझिशनल स्विंग स्टॉक मध्ये ऑप्शन मध्ये का स्टॉक्स आणि मध्ये? मला फक्त स्टॉक्स मध्ये. ओके, व्हेरी गुड. आणि मला फक्त प्रश्न हाच आहे की रिवेंज. Okay, revenge trading. वो भी होता है. It is a follow-up for whatever question of Aparna. ओके. नेक्स्ट. सबके क्वेश्चंस पहले मैं सुनूंगी, फिर एक एक करके एड्रेस करेंगे. सबका क्वेश्चंस का आंसर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि सबके चैलेंजेस ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हुए चैलेंजेस है. ओके. हेलो मैडम. यस रितेन, हाउ आर यू? गुड. बेटी कैसी है? बेटी मस्त है, बढ़िया. ओके, बोलिए. मैडम एक है, मतलब सपोज एक तो ग्रीड इशू आ रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कहाँ रुकना है. क्या ट्रेड करते हो आप? क्या ट्रेड करते हो? बैंक निफ्टी सिर्फ. ओके, निफ्टी भी नहीं, ओनली बैंक निफ्टी. हाँ. ठीक है. और टाइम फ्रेम? सेकंड थिंग मैडम, टाइम फ्रेम 3 मिनट्स, एंट्री 3 मिनट्स की रहती है. ठीक है. सेकंड थिंग सेकंड क्या थिंग है? मैडम, अगर सपोज एक रैली आ रही है, सपोज मैंने उसमें 40-50 पॉइंट्स लिया एग्जांपल, उसके बाद अपने को और एक सपोज बड़ा कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, इन सेकंड मतलब उसमें भी कंटिन्यू रैली हो रहा है, तो वो वापस तुरंत एंट्री होके सपोज कैसे वो नीचे भी आता है, राइट? तुरंत एंट्री हो रही है, मतलब आफ्टर 40 पॉइंट्स लेके तुरंत एंट्री हो रही है, और वो थोड़ा नीचे आ रहा है 20-30 पॉइंट्स, तो वो ऐसे लेट मार के वापस वो हो रहा है, तो मतलब एंट्री भी तुरंत हो रही है, मतलब पॉइंट्स लेने के बाद भी. ओके. पॉइंट्स लेने के बाद भी तुरंत एंट्री हो रही है, मतलब अगेन ग्रेड ही आ रहा है ना? फियर ऑफ मिसिंग ही है. फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो आ रहा है. ओके. Okay, सबको ऑडियो बराबर आ रहा है ना? I think Pragati is facing some problem. आ रहा है सर. आ रहा है सर. Okay. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट. Abhinav, after long time. और किसी को कुछ डाउट्स है? हेलो सर. क्या हेलो मैम. यस Hello, नितिन. Good ये morning. प्रॉफिट गुड मॉर्निंग मैम. प्रॉफिट टिक नहीं पा रहा है सर एक्चुअली. मतलब ऑप्शन बाय हाँ. मींस कुछ मैं बाय भी कर रहा हूँ, कुछ एक अकाउंट में सेलिंग भी कर रहा हूँ. सेलिंग अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया हुआ है, और बाइंग में ऐसा हो रहा है कि आ रहा है और एक दिन में बाकी का सब प्रॉफिट चला जा रहा है. तो कैपिटल मेरा है वैसे ही है, और प्रॉफिट टिक नहीं पा रहा, ये इशू. मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा. मतलब जहाँ थे वहां पे रुक गए. यस, वहां पे ही हूँ. Again back to square one. Again back to यस square one. यस 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 यस. ठीक है. प्रॉफिट रुक नहीं रहा है. ओके.
और कोई? नेक्स्ट, एनी हा मोर मॅम, क्वेश्चंस? माझा एक क्वेश्चन आहे हा, की सपोज अगर जॉब क्विट करायचं असेल तर त्यासाठी म्हणजे आणि फुल टाइम ट्रेडर व्हायचं असेल तर त्यासाठी म्हणजे कुठले कुठले कंडिशन आपण म्हणजे अगोदर चेक केलं पाहिजे? ओके, विल ॲड्रेस दॅट. हा. सांगते मी. एकनाथ. We will take that. No problem. We will discuss. Everyone should contribute, okay, हाँ. to help the community. Yes. Eknath is now our recent example. He has quit the job. तो पण जॉब सोडताना त्याला पण असेच बरेचसे क्वेश्चन होते. ओके, फाइन. सो शैल वी स्टार्ट? ओके. How to manage job with trading. Okay. सबसे पहले, मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट? इसी की वजह से मार्केट चलता है. हर एक बंदा अपने अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड लेता रहता है. किसी का शॉर्ट टर्म व्यू रहता है, किसी का लॉन्ग टर्म व्यू रहता है. एंड एवरीबॉडी इज ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन थिंकिंग. कि किसी को लगता है मार्केट गिरेगा, किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा. इसीलिए बाय एंड सेल होता है. करेक्ट? कंप्लीटली जो भी चार्ट पे आपको दिख रहा है, दैट इज ऑल साइकोलॉजी ऑफ द कंप्लीट मार्केट पीपल. It is a replica of the psychology in a cumulated way. Okay, इसके लिए सब कुछ सीखने के बाद भी हमको कभी कभी फंसा हुआ लगता है. We get into the confusion state. Okay, so इसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि ये एक सेशन सबके लिए होना चाहिए. Whoever is interested, and we want to brush up all our family members. ओके, तो साइकोलॉजी ऑफ मार्केट में दो मेन चीजें क्या हैं? व्हाट यू पीपल थिंक? व्हाई मार्केट मूव्स? फियर एंड ग्रीड. परफेक्ट. किसी को फियर है इसलिए वो मार्केट से निकल रहे हैं, किसी को ग्रीड है इसलिए वो बाय करते जा रहे हैं. अभी यूफोरिया है मार्केट में, बहुत ज्यादा ऊपर 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 जा रहा है. कुछ लोगों को लग रहा है टॉप कर गया, कुछ लोगों को लग रहा है 22,000 क्रॉस कर जाएगा सून. बराबर है? तो सब लोग अपने अपने हिसाब से ट्रेड करते रहते हैं. सो नाउ हाउ आई विल ट्रेड? व्हाट इज माय स्टैंड? वेयर डू आई स्टैंड इन द मार्केट? तो मेरा स्टैंड के लिए सबसे पहले अपने आप को समझने की जरूरत है. वेदर यू आर अ अग्रेसिव पर्सन, वेदर यू आर अ काम एंड कूल पर्सन, आप बैठ सकते हो मार्केट को आराम से एनालाइज करके घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हाफ 1 आवर 75 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो. कि आप 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए भी आप तैयार हो. सो दैट इज हाउ योर ओन थिंकिंग कम्स इनटू द पिक्चर. तो उसके लिए आपको, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो या फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी साइकोलॉजी क्या है, तो आपको सबसे पहले तो कुछ दिनों के लिए समझना पड़ेगा मार्केट में. विदाउट ट्रेडिंग यू विल हैव टू जस्ट सिट एंड वॉच द चार्ट्स गोइंग. उस टाइम में क्या आपके अंदर मिक्स ये आ रहा है कि मुझे अभी बाय करना चाहिए, कैंडल भाग रहा है, अरे यार आई एम मिसिंग सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऐसी फीलिंग आ रही है. या फिर ये जा रहा है तो नीचे जरूर आएगा, मैं तभी लूंगा, ऐसा फीलिंग आ रहा है. इतना भाग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रुकेगा मार्केट. अभी तक इतने सारे आप सब लोगों ने जान लिया है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाता है, राइट? इफ इट हैड टू गो इन अ स्ट्रेट लाइन देन सब लोग अभी तक कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते. ओके, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है. जो भी स्टॉक या फिर इंडेक्स है, एक पर्टिकुलर रैली आने के बाद पक्का रुकती है. अगर आप सुबह सुबह या फिर आफ्टर 2 o'clock कोई रैली मिस करते हो, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि इट हैज
in a day it has given a pretty good move, say 3%, 4% move कभी कभी सुबह सुबह दे देते हैं, so that is more than enough for one stock, like it has already given a rally. कभी कभी कोई स्टॉक होता है जो 10%, 20% ऐसे रैली देते हैं, हर रोज देते हैं क्या? हर रोज कोई स्टॉक, have you seen stocks going like 5%, 10% every day? कोई होता है जब बहुत ज्यादा उसके लिए न्यूज होता है, कभी तभी जाके वो more than 5% मूव होता है, right? So when you see that already the stock has moved it more than 2%, 3%, then you should think कि उसको फिर से जाना होगा तो वो एक डिप करेगा. It should come down. It should give you an entry in whatever time frame you are trading. सबसे पहले अपने टाइम फ्रेम को फिक्स करो. Correct? What time frame you are comfortable? Whether you are a positional trader, whether you are a intraday trader, intraday में भी अगर 15 मिनट वाले हो कि 3 मिनट वाले हो, उसमें भी डिफरेंस रहेगा. How you are going to position yourself. Correct? So सबसे पहले what kind of trader are you? Or over period of time, how you have evolved. Okay, कभी कभी क्या लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, शुरुआत में लगता है कि आई एम वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, बट आफ्टर फेसिंग द मार्केट या फिर आफ्टर सीइंग द मार्केट एक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वट एवर पीरियड यू हैव गॉन थ्रू इन इन्वॉल्वमेंट विद द मार्केट, वो अपने आप इवॉल्व होके आता है. See, like we have also traveled from quite a long time period कि बहुत सारे ups downs पूरा वो देखा हुआ है. So now like ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ट्रेड नहीं करते, लेकिन वेरी लिमिटेड इसमें ट्रेड करते हैं. Why I said एकनाथ को वेरी गुड क्यों बोला, क्योंकि I am also in line with him. Currently we are also trading in a swing stocks trade में ही ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट और वो करके प्रिफर करते हैं. And he is always from the beginning he is doing selling. तो उनको वो एक कंफर्ट लेवल आ चुका है कि ऑप्शन सेलिंग करते रहते हैं. ऑप्शन सेलिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि ऑप्शन बाइंग में दिखता है. 3% to 4% मंथली भी आ गया. दिस इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन ऑप्शन सेलिंग. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? If you have a really very good capital, if you have really very good capital, option selling के जितना peaceful trading दूसरा नहीं है. Okay, so and swing trading में भी अगर आप proper setup follow कर रहे हो तो swing trading में भी आपको losses बहुत कम देखने को मिलते हैं. आपका अगर capital, you have to divide like how you are taking your capital, what is your capital size. अगर समझो आपका 1 लाख रुपए है एग्जाम्पल के लिए, सो आप पर ट्रेड कितना अलॉट कर रहे हो. तो ऑप्शन जब बाय करते रहते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत मिलता है 1 लाख रुपए में आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटीज जब मिलते तो हम लोग बाकी कुछ सोचते ही नहीं, सीधा उतने पूरे 1 लाख रुपए का क्वांटिटी मार देंगे. इन केस इफ इट गोज अगेंस्ट यू देन व्हाट? समीर. हाँ सर. पोजीशन साइजिंग. हाँ, इसको बोलते हैं वो तो कर position. दिया. Now I am very disciplined in that. Very good. So divide your capital into at least 5 to 7 parts. I will say actually 10 parts में divide होना चाहिए, और each part आप अलग अलग ट्रेड में इन्वेस्ट करोगे. ठीक है, whether you are a swing trader, whether you are a option buyer, or whether you are a option seller. Remember that you are dividing your capital into equal parts to take different trades.
You should not cross the limit. मतलब एक ही ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेके नहीं चलना है। ओके जब ये चीज हम लोग सही से फॉलो करेंगे ना तो यू विल हैव अ रूम। अगर एक ट्रेड गलत भी हो गया तो आपको दूसरा ट्रेड तीसरा ट्रेड लेने के लिए आपके पास कैपिटल रहता है। एंड ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे ट्रेड गलत ले रहे। It's a very rare case. How many of you agree? You are in market from so many years now. So how many of you agree कि सारे के सारे ट्रेड तो गलत नहीं हो सकते? हो सकते हैं? नहीं। Here I will add, सारे के सारे ट्रेड बराबर भी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। Yes. So if you are thinking like that, and because of that, if you are beating yourself, stop that. एवरी ट्रेड सही नहीं आएगा। कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस बंदा हो, 25 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 50 साल का एक्सपीरियंस हो। इवन राकेश झुनझुनवाला जी ऑल्सो हैड सम ऑफ हिज स्टॉक्स रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? इन्वेस्टमेंट में भी गलत इन्वेस्टमेंट उनके भी हुए थे। इन स्पाइट ऑफ पीपल कम टू हिम, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे अलग रिपोर्ट दिखा के। ही हैज ऑल्सो मेड मिस्टेक्स। सो हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो गलत ट्रेड्स तो होंगे ही। ये तो दिमाग में लेके ही चलना है कि सारे ट्रेड सही होंगे, मेरे सारे ट्रेड सही आने चाहिए। या फिर किसी की तो सभी ट्रेड सही आते होंगे। लाइक दैट ऑल्सो एक कभी कभी दिमाग में आता है। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू। और अगर कोई बता रहा है आपको कि मेरे सभी के सभी ट्रेड बराबर आ रहे हैं, देन बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। ओके दिस इज अ वेरी वेरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉनेस्ट ट्रूथ विच वी आर शेयरिंग, बिकॉज उसकी वजह से बहुत माइंड में स्ट्रेसफुल ट्रेड हो जाता है। सेकेंड थिंग अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे रखेंगे, राइट? सबसे पहले अपने लाइफ में हमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में ना, दैट विल बी सीन इन योर ट्रेडिंग वेरी फास्ट। लाइफ में डिसिप्लिन मतलब क्या कि मैं इतने बजे उठना है तो उठूंगी, उतने बजे मैं मेडिटेशन व्हाटएवर योगा वॉकिंग और समथिंग आई एम गोइंग टू डू। मुझे इतने स्टॉक्स का आज स्टडी करना ही है, मार्केट इतने से इतने टाइम तक मुझे देखना ही है। व्हाटएवर दोज रूल्स यू आर डूइंग इट। पहले क्या होता है, फॉलो करने के लिए कभी भी हमारा माइंड नई चीज फॉलो करने के लिए रेडी नहीं होता, रिलक्टेंट रहता। तो सबसे पहले उसको फोर्सिबली उस एक्शन में लाना पड़ता है। The first reaction to any new thing, any new adaptation, any new thing is mind is always reluctant to get adjust. That is Newton's law of inertia. Okay, तो इनिशियली जब उसको पता चलता है कि ये बंदा सुनने वाला नहीं है, ये करके ही मानेगा, तो वो फिर अपने आप एडजस्ट होता है। तो उसको वो बताना पड़ेगा। I will tell you the practical example. जब भी हम लोग आफ्टर गैप ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, तो इवन माइंड एंड बॉडी ऑल्सो शुरू में ड्यूरिंग इनिशियल हाफ एन आवर तो 45 मिनट्स बहुत तकलीफ देती बॉडी या फिर माइंड। ऐसा लगता है कि नहीं अभी वापस चलो, बस हो गया, क्या कर रहे हो। When you don't listen to it and you keep doing the thing, उसके बाद में आगे का सफर पता भी नहीं चलता है। very easy. वो बहुत आसान हो जाता है। You go to the top and you enjoy everything. So initial phase में जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, even be it in life or be it in trading, initially mind जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा। So that is when your consciousness comes into the picture. Whenever you are taking a trade,
कॉन्शियसली अपने आप को कॉन्शियस होके देखना पड़ेगा, वेदर आई एम डूइंग द एंट्री एट द राइट पॉइंट, वेदर आई एम नॉट डूइंग एनी फोमो एंट्री, इस भाग गया है इसलिए तो नहीं एंट्री कर रहा हूं, या फिर डू आई हैव अ सॉलिड प्रूफ ऑन द चार्ट्स that yes this market is from here at least मुझे 50 पॉइंट, whatever the points you want, उतना तो कम से कम दे के रहेगा. Whether the market is trading at resistance, whether the market is trading at support, whether I am entering in between somewhere where already the move has come, should I wait for the dip, या फिर कभी कभी छूट जाता है, वो छोड़ने की भी तैयारी होनी चाहिए. Yes. So this is not coming into my setup, I'm not going to enter. आप कॉन्शियसली अगर कम से कम 20-25 टाइम्स अगर आपने कॉन्शियस डिसीजंस ऐसे लिए, तो नेक्स्ट डिसीजन आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सही लेने लगेगा. दिस इज हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. इनिशियल जो आदतें डालनी है वो कॉन्शियसली डालनी पड़ती हैं, कॉन्शियसली सोच के करना पड़ता है, फिर वो अपने आप सबकॉन्शियस में जाता है. एक्चुअली 21 days and all people say, but as per studies it takes at least 66 days for a subconscious mind to get into the proper routine. Inculcate the habits, मतलब आदतें ठीक अंदर से लग जाना. सबकॉन्शियस में पूरी तरह से वो आदत को उतरने के लिए 66 डेज का टाइम लगता है एज पर प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी. वो 21 डेज एंड ऑल ऐसी कुछ लोगों ने इसमें बनाया हुआ है, बट एक्चुअल स्टडी से साइंटिफिक स्टडी से 66 डेज लगता है. So how much desire you have in your thing कि आपको सक्सेस इसमें करना ही है, तो वो डिजायर भी मैटर करेगा आपके एक्शंस आप कैसे ले रहे हो. ओके, सो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में हो या लाइफ में हो, उसको हमें कॉन्शियसली एफर्ट डाल के करना पड़ेगा. ओके फाइन. रिगार्डिंग एसएल कि कैसे ट्रेल करना है क्या है, आई विल कम टू चार्ट एंड आई विल गाइड दैट ऑन दैट. चार्ट पे हम लोग एग्जांपल लेके वो भी देखेंगे कि एसएल कैसे रखेंगे, कौन से पैरामीटर्स पे देखना है क्या, वो चीज हम लोग बात करेंगे. ठीक है. नाउ अगेन इट सेम फियर एंड ग्रीड, रॉन्ग स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस का हम लोग इसमें बात करेंगे. फियर कम्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग एक्सपीरियंसेस. हमारे पुराने जो ट्रेडिंग के जो सारे रॉन्ग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसकी वजह से हमें डर लगता है इसके लिए कहीं जो आ रहा है जो दिख रहा है वो भी ना चला जाए. दिस इज बिकॉज ऑफ दैट फियर कम्स. So that for that we need to keep talking to ourselves. Self suggestions बहुत ज्यादा मैटर करती है when you are in trade, when you are consciously आपको बात करना पड़ेगा, तो वो सबकॉन्शियस में जाएगा. बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले यूज करते हैं इस टेक्निक को. They keep suggesting themselves, yes, I am a good trader, I am a good analyzer, I am a very good executor, you can say. आप जहाँ पे अटक रहे हो, you should keep giving the message continuously. सामने वाले आपको पागल भी कहेंगे कभी कभी, ये क्या बड़बड़ती रहती है अपने आप में, बट जिसको पागल बुलाया जाता है वही लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखाता है. राइट. सो सजेस्टिंग फियर और ग्रीड को निकालने के लिए सेल्फ सजेशन is helps a lot. I follow my rules, I am a disciplined trader, I am a successful trader, I always follow my rules, I identify right opportunity at the right time.
आई एग्जीक्यूट इट एट परफेक्ट टाइम, परफेक्ट लेवल्स। तो ये जो सेल्फ सजेशन है, इसको आप कर सकते जब भी आप समझो। इवन ये जैसे ट्रेकिंग में बोल रहे थे, कभी कभी डिफिकल्ट पैच होता है ट्रेकिंग्स में, ओके। तो एट दैट टाइम इफ यू कैन, नहीं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, दिस इज वेरी इजी, आई कैन डू इट, जब आप बोलते रहते हो ना, तो आप कर जाते हो, and you will not know also. So everything applies in trading also. So yeah. Like example of विराट कोहली। विराट कोहली क्या बोलते हैं कि मैं जब तैयारी करके जाता हूँ मैदान में या फिर कुछ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में या फिर फॉरेन के ग्राउंड्स में जाता हूँ मैचेस के लिए, सो ही टेल्स कि मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ कि उसमें अपोजिट टीम का जो सबसे खतरनाक बॉलर है, जो सबसे पावरफुल विकेट टेकर है, सबसे बढ़िया गेंदबाज है, उसको मैं उसके ऊपर हावी हो रहा हूँ, उसको मैं हिटिंग हिट बैडली, आई एम हिटिंग बैडली, मतलब पूरा उसकी क्या बोलते हैं पावर निकाल रहा हूँ, एंड आई एम ओवर पावरिंग द बॉलर। not only says, he also visualizes it every time, like whenever he is doing the जिम में रनिंग करते हुए वो उस बात को विजुअलाइज करके अपने आप से बात करते रहते हैं। एंड ही whenever he is driving, whenever he get a time, like see, पागल बनना पड़ेगा कि मुझे सक्सेसफुल होना ही है किसी चीज में, ठीक है। अभी इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि ट्रेडिंग में मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये है वो है, ओके। बट बिलीव मी, जब जस्ट थोड़ी देर पहले मैं इन्होंने बोला कि आपकी एंट्री सही है, ओके। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ, मैं जल्दी निकल जाती हूँ, या फिर गलत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं हिट हो जाता है, फिर एक बार प्रॉफिट आ गया, ओके। जैसे इट वाज डिस्कस्ड बाय सागर कि मेरा प्रॉफिट आ गया तो मैं कब ट्रेड से निकल जाता हूँ, एंड आफ्टर दैट अगेन आई कम टू स्क्रीन, बाद में आके देखता हूँ तो मेरा एग्जिट गलत था, बराबर। दैट ऑल थिंग्स कैन बी क्योर्ड विद दैट माइंडसेट की सेल्फ मैसेजिंग एंड गिविंग पावर टू योरसेल्फ, थिंकिंग कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा जो ट्रेलिंग है वो सब सही है, बराबर है। ओके, नोट डाउन योर वेयर यू आर स्टकिंग, एंड उसका अपोजिट अच्छे से एक सेंटेंस बना के रखना है कि आई एम राइडिंग द कंप्लीट रैली, आई एम टेकिंग द एंटायर रैली वेरी Cash all the rally. properly, I am encashing the entire rally, I know my entries, I know my exits, I follow the discipline। ये सारी चीजें हैं जो हमको एक अच्छा ट्रेडर, आप जब बार बार सेम चीज बोलते हो ना, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है और आपको वही चीजें दिखाता है। आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग दिस, जब भी आप किसी चीज को करने की ठान लेते हो, एग्जाम्पल हमने गाड़ी का लिया हुआ है, आपकी समझो आप कोई गाड़ी लेने का सोचते हो कि इफ आई टेल यू कि आपने डिसाइड कर लिया कि कल आप कुछ दिनों में आप BMW लेना चाहते हो, ये कलर होगा, ये मॉडल होगा, उसके बाद में आप जब भी बाहर जाओगे आपको वही कार दिखने लगती है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? ऐसा था क्या कि पहले वो गाड़ी रोड पे नहीं थी? नो, it was there, but as you diverted your attention to that, your mind started showing it. It's as simple as that. जब आप कंप्लीट डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे ये टाइम फ्रेम में ये करना ही है, तो व्हेन यू continuously give instruction to your mind on that,
वो आपको वो वैसे रास्ते, वैसे अपॉर्चुनिटीज, वैसे सारी चीजें दिखाएगा ही। ओके, सो इट डिपेंड्स कि आप कितना उस पे बिलीव करते हो, आप कितना अंदर से डिजायर करते हो। ओके, ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ कर रहे हो, नहीं देखते हैं होगा कि नहीं होगा, हाँ अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, तो आपका माइंड भी वैसे ही करेगा, होगा तो भी चलेगा, इसको नहीं होगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, तो इसको दिखाया तो भी चलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाया तो भी चलेगा। ओके, so now I will do a small exercise. Turn around your room and try to find anything that is in blue color. देखो आजू बाजू देखो, ब्लू कलर क्या क्या है। Everyone, please switch on the camera. कैमरा ऑन करो, आजू बाजू देखो क्या क्या ब्लू कलर में है। What and all you can find? How many things you find? Tell me. In इतनी chat. ज्यादा चीजें दिख रही है। Come on, unmute and tell. कितनी चीजें दिखी? Chair, then sofa covers, then some crayon in blue color. After that, my pen. Okay. 4-5 चीजें हो गई। Other. सर एक बेडशीट, वन ऑफ माई ड्रेस, टिमर, मेरा एक टिमर है, एक बॉटल है, ब्लू कलर कैप कोका कोला का, बस Okay. उतना ही। Others दिख रहा है ब्लू कलर में? Bottle, mat, obstra. Okay. 4-5 things. उसमें सबसे बेस्ट थिंग है स्टॉक मार्केट ट्रेडर। Very good. Okay. Fine. Now turn around and see all other colors. जब आप ब्लू कलर को देख रहे थे तो आप क्या ढूंढ रहे थे? ब्लू कलर ढूंढ रहे थे? ऐसा नहीं है क्या वहां पे दूसरे कलर की चीजें नहीं है या दूसरी चीजें नहीं है? You were giving only attention to looking at blue color. So आप बाकी चीजें इग्नोर कर देता है आपका माइंड, आपका माइंड कंप्लीटली इग्नोर कर देगा एंड आपको सिर्फ वो दिखाने की कोशिश करेगा कहाँ ब्लू है, कहाँ ब्लू है, what and all I can see, how many things I can buy, I can locate. Okay, so that is how our mind works, guys. Fantastic. इतने टाइम से जो माइंड स्टडी मैं कर रही हूँ उसमें से दिस इज द बेस्ट थिंग कि you wherever you divert your attention, your mind will show that thing to you. Perfect. If you are diverting your attention to only creeping stock market, sorry guys. Okay, so if you are taking your attention only to कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहे स्टॉक मार्केट में, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, कैपिटल नहीं अरेंज कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम है, मैं गलत ही एंट्री करता हूँ, मैं गलत ही ये करता हूँ, if you are continuously telling this to your mind, you are going to see more of that. How many of you agree with this? Yes, madam. Yes, I agree. You are going to attract more of that. Simple attention game है। जब आप किसी चीज को बोलते हैं ना, वो डायलॉग भी बार बार बोलती हूँ, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। Okay, so how much deep desire you have for anything to achieve, be it stock market trading or any financial freedom or anything you want to do it in a life, not only regarding stock market. It is generally for everything. Okay, so ऐसे पागलों की तरह सोचना चाहिए। Even when we had a talk with Praveen Jadhav also, उन्होंने भी बोला था कि वो बार बार वो विजुअलाइज करते थे कि वो चैलेंज हो गया है, कैंडल्स आर चैलेंज एंड ही इज टेकिंग परफेक्ट एंट्री
and he is making good profits from that. वैसे वो बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं, बार बार उस चीज को देखते हैं, तो आपको अपने हिसाब से आपको यू विल नॉट बिलीव, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस में बहुत ताकत है। जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो ना, आपका माइंड उसको सच मान जाता है, उसको सही में नहीं पता है आप जो दिखा रहे हो वो रियलिटी नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है, हम कोई मूवी देख रहे हैं and we get so involved that we sometimes we cry, sometimes we laugh, sometimes ऐसा लगता है वो सामने वाला हमसे ही प्यार से बात कर रहा है। How many times we feel, because वो हमारा माइंड जो है उस चीज को जो हो रहा है, जब हम लोग पूरा एनग्रॉस्ड होके उसको देखते रहते हैं ना, तो उसको लगता है वो चीज सही, इट्स हैपनिंग राइट देयर, एंड अकॉर्डिंगली वो सैड सीन्स में रोने लगेगा, डरावने सीन्स में डरने लगेगा। Everything happens accordingly. It will start laughing when everybody is laughing around. So मैं हमारे माइंड को सही में नहीं पता है कि आप जो दिखा रहे हो तो सही है या गलत, तो आप पे ऊपर डिपेंड है कि आप क्या दिखा रहे हो। आप अच्छी चीजें दिखा रहे हो या उसको रॉन्ग चीजें दिखा रहे हो, कि आप हार रहे हो, आप जीत नहीं रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पाओगे, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज इसमें हमेशा लॉस ही होता है, स्टॉक मार्केट इज गैम्बल, इट इज नॉट अ सिस्टमेटिक थिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। उनको कॉन्शियसली रिप्लेस करना पड़ेगा। बड़े बड़े सेंटेंस बनाओ, बड़े बड़े ये चीज बार बार मैंने सेम चीजें बोली है, फिर भी लोग भूल जाते हैं, सो आई हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, सो बिलीव मी, दीज थिंग्स रियली वर्क। पागल बनना पड़ता है, इट विल मेक वंडर्स। ओके, अगर आप सोच के बैठे हो कि मैं इतने दिन में ये चीजें करके रहूंगा, तो वो होता है। विजन बोर्ड्स रियली वर्क। मेरे कितने सारे विजन बोर्ड्स में मैंने थैंक यू अचीव्ड करके लिखा हुआ है। ओके, सो इट वर्क्स, क्योंकि वो आपके सामने हमेशा रहता है गिविंग, कि ये कैसे हो गया। ओके, थिंग्स डू हैपन, यू हैव टू बिलीव इन दैट एंड यू हैव टू मेक इट हैपन, कि नहीं, ये होना ही है, इसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं है, ये चीज होकर ही रहेगी, इसको होना ही है। ओके, सो थिंग्स डू हैपन, यू हैव टू बिलीव। सब लोग बोलते हैं ये क्या है विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें, कितने सारे लोगों को वो चीजें बिलीव नहीं होती है, बट इट इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि यू आर नॉट गलत, ऐसी कुछ चीजें नहीं देख रहे हो आप, जो उसकी वजह से जब आप विजुअलाइज करते रहते हो, एक अच्छा हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जो रिलीज होता है, जो आपको फील गुड कराता है। हम लोग ये करते थे, मॉर्निंग में मेडिटेशन करते थे। हाउ यू यूज्ड टू फील, टेल मी राहुल, एकनाथ, whenever we used to visualize all those things? बहुत बढ़िया। So वो time used to be the best time, right? So we used to feel those hormones get released in our mind and they make us feel good. When the body feels good, it tries to create more of that. इसीलिए बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीजों पे खुद को रिवॉर्ड दिया करो। जब भी आप सही डिसीजंस लेते हो, जब भी आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो ना, भले ही एक चॉकलेट ले लो, लेकिन अपने आप को रिवॉर्ड दिया करो। That will give you continuation of the good feelings. Okay, so when you reward it for, आपने आज के दिन कॉन्शियसली कुछ सही डिसीजंस लिए, कुछ सही रूल्स फॉलो किए ट्रेडिंग में, you observe that yes, today I am I am following good discipline, I am following everything as I had decided. So reward yourself at the end of 3:30 को, अपने आप को reward करो, give yourself a chocolate maybe, or yourself a hug, say yourself, wow, I am proud of you, you are so good,
I'm definitely going to treat for it. So these things will make you repeat that habit again. आप किसी बच्चे को अच्छा करने के बाद अगर कुछ रिवॉर्ड देते हो तो वो और अच्छा करके दिखाने की कोशिश करता है, करेक्ट? हम लोग बच्चे ही हैं, हमारा माइंड बच्चा ही है, और रहना चाहिए to get better results. it still gets happier when you reward it. It still gets, that hormone gets released when you feel good. So this is all because of हमारे दिमाग का खेल है, और मार्केट इज completely दिमाग का खेल ही है. Reflection of all the emotions of traders, Different people, bulls and bears. So if you have control of your own emotions, you can be the winner in the market. See, I will tell you, कुछ लोग पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से ट्रेड करते हैं, बराबर? तो इवन वी डिस्कस अभी लाइव में जब आते रहते, अब तो हम लोग बताते रहते कि कितना भी ऊपर भाग रहा है, बट जब वो थोड़ा करेक्शन करेगा तभी हमारे कुछ ट्रेडर्स है उसी समय ट्रेड करके प्रॉफिट करके निकलेंगे, करेक्ट? Yes. और कितना भी गिरने दो, उसमें जब वो बाउंस करेगा तब एंटर करके. There are so many people, you must be knowing, हमारे ग्रुप में ही है मल्लिकार्जुन वैसा ट्रेड करता था. आई थिंक फाल्गुनी, स्नेहा का भी दिमाग वैसे ही चलता है उल्टा. बट दैट वी टेल इट इज योर ओन निश, मतलब वो आपका स्पेशलिटी है, उसके ऊपर आपको करेक्शन की जरूरत नहीं है. आई विल ऐड वन मोर लेयर टू दैट. ओके, सो अपर्णा, whatever your question कि मैं पी में अच्छा ट्रेड कर पा रही हूँ, सी में मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है. ओके, तो दैट आल्सो slowly you have given message to your mind, you have to come out of it, या फिर चार्ट उल्टा देखना पड़ेगा आपको. Okay, so next, ट्रेंडिंग डे में हम लोग बहुत ज्यादा एग्जिट फास्ट हो जाते हैं एंड साइडवेज में रुक के बैठे रहते हैं कि अभी मूव करेगा करके, राइट? तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ साइडवेज और वेदर इट इज अ ट्रेंडिंग डे? ओके, ट्रेंड करने, दैट इज ऑल रिलेटेड टू वॉल्यूम. आई विल शो इट इन द चार्ट. ओके, वो कैंडल अपने आप खुद ही बता देता है whether it is a selling climax, whether it is a buying climax, whether it is going to trend today. So कैंडल अपने आप में ही एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दे देता है without any indicators also. Perfect. And that will come to everyone after having pretty good long experience with the market. सिर्फ कैंडल देख के आपको आइडिया आ जाता है. सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स डू वर्क. सिर्फ कैंडल का एक्शन एट दैट लेवल will also tell you whether the market is going to go above that or whether it is going to get rejected from that. Okay, आपको सिर्फ आप लोग इंडिकेटर्स ये वो ठीक है इनिशियल स्टेज में चाहिए होता है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता, ये सारी चीजें रीड करने के लिए आता नहीं. Okay, initial stage of the market, we depend morely on much on indicators. As you grow, as you mature in the market, only candles can tell you a lot about the story. Which already I have given example of your driving. जब हम लोग शुरुआत में जब कार चलाना सीख रहे थे, how many of you drive car? तो उसमें जब शुरू में सीखने के टाइम पे गियर शिफ्टर के ऊपर कितने बार देखना पड़ता था? यस सर नो? मतलब फर्स्ट में या थर्ड में या फिफ्थ में, सेकंड है, फोर्थ है, देखना पड़ता था. बिकॉज आवर माइंड इज लाइक दैट. वो पता नहीं चलता है, या फिर वी डोंट नो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द व्हीकल,
वो इवन इफ यू टच द क्लच एंड बॉडी ऑफ द कार, अभी आपको बिना गियर कौन से इसमें चल रहा है शिफ्टर पता चलता है, करेक्ट? सेम थिंग अप्लाइज टू दिस ऑल्सो। तो इनिशियली वो देखना नहीं है, ऐसा नहीं, तो इनिशियली वो भी देखना है, और कभी कभी आपको लग रहा है कंफ्यूजन, तो देखना पड़ता है। ओके, इंडिकेटर सारे गलत है ऐसा नहीं है, प्राइस एक्शन के ऊपर ही वो इंडिकेटर्स बनते हैं। ओके, वो तो आर रिलेटेड, वो जो प्राइस में दिख रहा है वो इंडिकेटर में दिखेगा आपको, राइट? आरएसआई फॉर एग्जांपल, आरएसआई अगर प्राइस ऊपर जाके फिर से रुक रही है, मोमेंटम कम हो गया है, तो अब उसके हिसाब से ही वो प्लॉट होगा, करेक्ट? सो बिकॉज ऑफ विच वी सी डबल टॉप, डबल बॉटम, and accordingly it gets rejected from that. It will form some hammer or some candlestick pattern with volume, with selling climax, सब कुछ buying climax, वो सारी चीजें वो आपको कैंडल में ही दिखाई देंगी। वो कब आपको परफेक्टली समझ में आएगा? जब आप उसके साथ में बहुत टाइम बिताते हो, या फिर हर एक बार उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, उसके साथ यू हैव टू फ्लो विद द मार्केट। उसको समझने की कोशिश करो। आप जब भी फॉर अ लाइटर नोट, when you are staying long time with your spouse, you understand the person when he is angry, when he is in good mood, कब उनसे अपनी बातें मनवानी है, कब जो भी छोटा मोटा होता है वो बताना है, वो सारी चीजें हमको समझ में आने लगती है when you spend time with them. So try to talk to the chart, try to see, सारे इंडिकेटर्स बंद करो और कैंडल के साथ में बातें करना सीखो। As you are all seasoned traders now, you have spent some time in the market. That's why I am telling this to you. कैंडल्स को समझने की कोशिश करो। कैंडल्स में जब विक्स आते हैं ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जब भी विक्स आते हैं, so that is telling you a story that it is getting rejected from that level, right? So if it is getting again continue, अगर नीचे से रिजेक्शन आ रहा है और फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहा है, तो that is also telling you, if it is accompanied with the volume, that will give you one more confirmation कि हाँ यहाँ पे इसका सेलिंग खत्म हो गया है, तो अभी ये ऊपर जा सकता है। So try to see the candles, bare candles, removing all the indicators. Indicators कब लगाएंगे? जब हमको सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है। यूज फिबोनाची सीरीज अ लॉट। ओके, जब भी मार्केट बहुत रैली कर चुका है, उसके बाद में एक करेक्शन ले रहा है, तो ट्राई टू यूज फिबोनाची सीरीज, दे टेंड टू गेट रेस्पेक्टेड। फिबोनाची सीरीज इज ऑल्सो अ साइकोलॉजी। क्यों बार बार 0.618 से ही मार्केट घूमता है? क्यों वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं? राइट, ट्राई टू यूज फिबोनाची सीरीज टू आइडेंटिफाई। अभी एक रैली हो चुका है, मैं डीप बाय स्विंग बाय करने वाला बंदा हूँ, राइट? आई डोंट ट्रेड द रनिंग मार्केट, आई वेट फॉर इट टू कम डाउन टू माय लेवल्स and then I try to enter. If you have your levels marked, if you have your Fibonacci marked, and if it is forming some good pattern at that level, you will get definitely confidence to trade that. Confidence and conviction accompanied by volume. Volume and price action is prime things. Along with that, to have some level confirmations, you can use Fibonacci series. Okay, तो हम लोग जब चार्ट खोलेंगे वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट रिवेंज ट्रेडिंग। कोई बताएगा रिवेंज ट्रेडिंग क्यों होता है? शेयर एक्सपीरियंस कब होता है? कब होता है, क्यों करते हैं? मैम जब ज्यादा लॉस होता है ना, तो प्रैक्टिस करना कर करके हो जाता है, इससे ज्यादा लॉस ही होता है। परफेक्ट, More of Okay. ego related. परफेक्ट। ओके, व्हाट इज योर टेक केकनाथ? क्यों भाई होता है? ईगो का ही बोल रहा था मैं, गलत कैसे हो सकता है? परफेक्ट। Revenge trading is the equally related to ego. और you will not believe कि कुछ लोग हैं जो हमसे
टच में है, हम लोग स्टॉक्स वगैरह पूछते रहते हैं, तो किसी स्टॉक में 10 स्टॉक में प्रॉफिट हुआ रहेगा, एक स्टॉक में अगर लॉस हुआ है ना, तो उसी में करना चाहेंगे फिर से। वो स्टॉक का क्या हुआ देखो, उसमें ले सकते हैं क्या अभी, उसमें फिर से बाई कर सकते हैं क्या, उसमें फिर से प्रॉफिट कर सकते हैं। अरे भाई वो उससे निकल चुके हो, दूसरे में ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुके हो, फिर क्यों उसी में अटके हो। Some members will be able to understand. एक डॉक्टर साहब है हमारे, हमने उनको बहुत बार बोल बोल के फिर अभी चेंज किया है। ओके सो वो जब 9 स्टॉक में प्रॉफिट हुआ लेकिन एक में लॉस हुआ ना, तो उसके बारे में ज्यादा पूछते रहते कि उसमें क्यों हुआ। वो कैसे लॉस हो सकता है, उसमें ही प्रॉफिट, उसी स्टॉक में फिर प्रॉफिट करना है, उसको फिर से बॉटम में पकड़ना है। तो दिस इज हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। आई और कैन नॉट बी रॉन्ग, मार्केट इज ऑलवेज देयर टू प्रूव यू रॉन्ग, and it is designed like that to make you feel superior than it and make you feel better than that, and उसी time it will give you tight slap या फिर it will trap. नाउ यू नो द रीजन फॉर दैट रिवेंज ट्रेडिंग। क्या हो सकता है, एक तो बहुत लॉस हो चुका है तो उसी से कवर करना है, दैट फीलिंग इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ दैट, एंड द ईगो, आई कैन नॉट गो रॉन्ग। एंड टिपिकली engineers tend to have this ego क्योंकि और वो लोग होते हैं जो पहले से कभी फेल नहीं हुए रहते हैं, Toppers. हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाए हैं, हमेशा, मतलब इट हैज बिकम लाइफ इज लाइक, जैसे ही डिग्री खत्म हुआ, जॉब मिल गया, दे हैव नॉट सीन एनी काइंड ऑफ ups and downs, bigger ups and downs in the market, no life. Those people tend to have this ego. तो अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुका है, करेक्ट। अगर डायग्नोसिस बराबर हो गया है तो उस पे काम कैसे करे, उस पे इलाज कैसे करे, उसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब बताएंगे, क्या हो सकता है इलाज। ओके सो व्हेनेवर देयर इज अगर आपको बीमारी का पता ही नहीं है, इट इज वेरी डेंजरस, It is very difficult also. वो कब आपको अंदर के अंदर खोखला कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी क्या हुआ है, डायग्नोसिस हो चुका है कि हमको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा। आई कैन बी रॉन्ग, I can be wrong, but I know how to overcome that. I can be wrong in some of my trades, but most of my trades are correct. Some of my trades are, sometimes it goes against me. You should accept that. Whenever you go wrong, yes, I can be go wrong. Next trade, I'll do it good. लीव दैट, जो जिसमें अगर आपने 2 बार स्टॉप लॉस हिट कर चुका है स्टॉक, उसको छोड़ दो, उसको देखना भी छोड़ दो। Yes. In that context, I will tell you, मतलब आपको उस स्टॉक का बिहेवियर या फिर उसमें जो रिपल्स चल रहे हैं, उसमें जो पैटर्न चल रहे हैं, उसमें जो वेव चल रही है, वो समझ भी नहीं आ रही है करके एक्सेप्ट करो। और उस चीज को कुछ दिनों के लिए देखना छोड़ दो। जब आप बार बार गलत होने के बाद में फिर वही चीज देखते हो ना, तब ज्यादा रिवेंज ट्रेडिंग होती है। परफेक्ट। गलत हो, एक बार गलत हो गए, गलती से गलत हो गए या फिर रॉन्ग एग्जिट हो गया, अगर आपने एनालाइज किया कि हाँ दिस आई वाज राइट इन माय एनालिसिस बट आई एग्जिटेड बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग थिंग, तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा ट्रेड लेने से पहले 1-2 सेकंड सोच रहे हो whether I am entering because I have lost in this or because of revenge trading or because of ego, conscious effort. Again here also you have to have a conscious effort before taking any trade. 1-2 मिनट का कॉन्शियस रहता है, अगर आप वो कॉन्शियसली डिसीजन पहले कुछ दिनों में आप करेंगे, कुछ ट्रेड्स में करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस
कॉन्शियसली उस चीज को सही तरीके से देखना चालू करेगा. ओके, सो इफ यू आर फीलिंग अगेन एंड अगेन आई एम गोइंग रॉन्ग, तो ट्रेडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा और सिर्फ बैठ के एज अ पनिशमेंट, और जैसे रिवॉर्ड्स देते हो वैसे पनिशमेंट भी देना पड़ेगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के चार्ट देखना पड़ेगा. Yes. Without trading, without bringing in your emotions into that. Clear? So बीमारी का पता चला है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा. Okay, and one more thing here I will add. See, even if sometimes we miss the rally, we start beating ourselves. Okay, because of that, what will happen next time, even if it doesn't give rally, we tend to stay, or what you can say, hook on to the trade for longer time, thinking that now it will give the required move. But at end of the day, अगर आप सोचोगे और देखोगे तो आपको खुद को अपनी गलती समझ में आ जाती. So start journal and writing the trades which went very good, which went very bad. दोनों में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. And always have in mind कि मुझे मार्केट से पूरा का पूरा मुझे ही लेना है या फिर मुझे सब कुछ रैली लेना है. That also mindset will give you a lot of trouble. ऐसा नहीं होता है. That is why market is going. Okay, nobody not, अगर कोई बोल रहा है ना इतने यहाँ पे बॉटम में मैंने लिया और मैंने ऊपर जाके टॉप पे बेचा, सही में गलत बोल रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है. It's not possible. Okay, For anybody in the world it is not possible. बहुत ही रेयर केस या लक रहेगा कि वो एग्जिट करेगा और मार्केट नीचे आएगा. That would be a pure luck, no study. Okay, But imagine आप अगर उस ट्रेड में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट करके क्लोज कर चुके हो, उसके बाद अगर नीचे आता है तो व्हाट बेनिफिट यू आर हैविंग. बहुत अच्छा लगता है ना. इट इज ऑल माइंडसेट. बहुत लगता अच्छा है कि लगता है. मैंने टॉप पे बुक कर क्लोज लिया. कर दिया, उसके बाद नीचे आ गया और अरे ऊपर गया, तो that also is not your fault or that is also not in your hand. But in both cases अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, फिर उसके बाद जाएगा तो बुरा नहीं लगना चाहिए. There we keep telling पुण्य का काम करते रहना चाहिए. हमारे सर ने हमको सिखाया था. और you have to imagine such a way that कि मैंने कुछ बाय किया था, उसका अच्छा खासा एप्रिसिएशन हो गया, मैंने उसको सेल कर दिया, तो जो अनदर पर्सन जिसने मुझसे लिया है, उससे लिया, उसको भी थोड़ा मुझे रिलीव करने के रीजन की वजह से उसको भी थोड़ा फायदा मिले, देन इट इज बेटर. so this was told by अवधूत सर अगेन एंड अगेन. वो वही बताते थे कि नॉट नेसेसरी कि आप टॉप पे ही निकलो, टॉप पे ही निकल नहीं पाते हो. ओके, the person who has relieved you from your position and with that too with good profits, so let him also enjoy some profits. ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बाद में नीचे आ गया तो आपको खुशी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में ऊपर गया तो भी दुख नहीं होना चाहिए. whatever was your आपके हिस्से का जो था आपने उसको निकाल लिया. Okay, in that also, that is technique is also there in technical terms, staggered entry, staggered exit. तो उस staggered exit मतलब क्या है, मान लो आपने 100 क्वांटिटी ली है फॉर एग्जांपल, एंड आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करना है, तो यू स्टार्ट बुकिंग 50 क्वांटिटी, देन अनदर 20 quantity, another 10 quantity, another 5 quantity, like that you start booking. So even if after your enough result, if it goes up, you are part of the rally with whatever quantity you amount have. available with you. If it goes against or starts falling, you are not missing the major chunk. Whatever down you are getting, you get a
feeling or you get a sense with the help of chart, candles, volume कि बची हुई क्वांटिटी मुझे कंटिन्यू रखनी है या निकल जाना है. Getting the point? Okay. So all other जनरली खटक से एक एंट्री, खटक से एक एग्जिट, वही आदत होती है. बट ट्राई टू इम्प्रोवाइज इट. इट विल हैपन once you get hold of the total rally, total market and everything. Okay. Next question was profit not sustaining. मतलब प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, किसी में प्रॉफिट हो रहे हैं, किसी में लॉस हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग वहीं पे आके रुक रहे हैं. घर नहीं लेके जाना मिलता, घर को लेके जाने को नहीं मिल रहा है. ओके, क्यों नहीं मिल रहा है? जब प्रॉफिट हो जाता है तो हम लोग थोड़ा, क्या बोलते हैं आप उसको, कंसुलेंट वर्ड, एक रिलैक्स मोड में चले जाते हैं. एंड वी टेंड टू टेक रिस्क. आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अभी ट्रेड किया है तो आप लोगों को ऑब्जर्व किया रहेगा. अगर समझो आपने एक ट्रेड में 50,000 कमा लिया, एग्जाम्पल 50,000 आपने कमा लिया, तो नेक्स्ट ट्रेड में बंदा 50,000 के 1,00,000 रुपए कमाने के लिए भी रेडी हो जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व्ड इट? अरे मैं कमा लूंगा, 50,000 एक ट्रेड में आ गया, ये क्या बड़ी बात है. तो यू टेंड टू गिव योर प्रॉफिट्स एंड घर से भी देने चालू कर देते. you start bypassing the रूल्स, डिसिप्लिन, सिस्टम. आपको दिख रहा है कि आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, बट योर माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. एग्जिट बटन दबाने को नहीं हो रहा है, बिकॉज यू बिकम कॉम्प्लिसेंट. व्हेन यू आर मेड 50,000 का आपने अगर प्रॉफिट किया है, तो नेक्स्ट ट्रेड में उसका मैक्स टू मैक्स 50% ही आपका रिस्क होना चाहिए. मैक्स टू मैक्स आई एम टेलिंग, एक्चुअली 10% के अलग अलग ट्रेड्स होने चाहिए. 5,000 के आपको 5 ट्रेड आपने अलग अलग रिस्क का उतना लेना चाहिए. तब जाके वो 25,000 आप घर लेके जाएंगे. उसके बाद में वो बचे हुए 25,000 में 5 ट्रेड आप लेंगे, तो उसमें से अगर 2 गलत भी हो जाते हैं तो बाकी के 3 में, या फिर 3 गलत हो जाते हैं तो बाकी के 2 में आप कमा के निकलते हैं. सो दैट इज ऑल अगेन कम्स, प्रॉफिट घर लेके नहीं जा रहे बिकॉज यू आर नॉट मैनेजिंग योर रिस्क एंड रिवॉर्ड. व्हेन यू गेन बिगर, यू टेंड टू रिस्क मोर. उस टाइम में जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 50% तो मैं किसी भी हालत में नहीं देने वाला वापस मार्केट. दिस शुड बी योर थिंकिंग कि उसका कम से कम 50% मैं घर लेके जा रहा हूँ. जो रहेगा बचेगा 50%, उसी में मेरा रिस्क रहेगा. या फिर सम अदर सिचुएशन, व्हाट विल हैपन, जब आपका ट्रेड अच्छा आता है और बहुत प्रॉफिट होता है, तो यू स्टार्ट थिंकिंग I should have gone for a bigger sizing. I should have got. अभी आज मेरा अच्छा समझ में आ रहा है, आज मुझे मार्केट ब्लेस कर रहा है, तो मेरा साइजिंग अभी बढ़ना चाहिए. मुझे बहुत जल्दी, बहुत जो दुख हुआ है पहले, जो बहुत सारे मैंने ब्लोज लिए हैं मेरे ऊपर, उसका मुझे आज जवाब देना है. और यू बिकम मोर कंप्लिसेंट. कंप्लिसेंट. ओके, सो और आप ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा देते हो या फिर रिस्क बढ़ा देते हो. सो बिकॉज ऑफ व्हिच इवन इफ यू आर स्टेट ऑफ द माइंड, even if you are making profit, you are not again losing it and again coming back to zero. Okay, hope I have answered that. Now सागर का क्वेश्चन था कि जॉब छोड़ने के लिए क्या होना चाहिए. सागर, मार्केट में सबसे पहले तो आपको बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है कि आप कौन से प्रकार के ट्रेडर हो और आप क्या ट्रेड करना चाहते हो. परफेक्ट. और आपका कैपिटल कितना है, आप कैपिटल कितना इन्फ्यूज कर रहे हो. अगर आप समझो
नॉट, डोंट कीप वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट। 3 to 4% का अगर आप मंथली निकाल रहे हो, तो वेदर इट आपका कैपिटल अगर समझो 5 लाख रुपए है और 3 to 4% हम लोग कर रहे हैं, तो हाउ मच इट इज, अराउंड 15-20 हजार रुपए का आपको कंसिस्टेंट रिटर्न you can expect. If you are expecting bigger returns, you will tend to take bigger risks, which I would not recommend. Okay, पहले consistency पे ध्यान देना है। अगर आप उससे खुश हो, आपका घर चलता है, फिर ठीक है। और दूसरा, कम से कम आगे आने वाले 1 से 2 साल तक बिना इसमें प्रॉफिट हुए अगर फिर भी आपको रहना पड़े, तो उतना कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। That will not shake your mindset, or it will not give you trouble on your psychology. कि अगर मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा नहीं रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग इन ब्रेक इवन और लूजिंग इवन स्मॉल थिंग्स ऑल्सो, फिर भी मेरा घर आराम से चल रहा है, उसकी वजह से 1-2 साल में उसकी वजह से आपके घर चलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। It will affect your decision making capacity. अगर वहां पे तकलीफ हो रही है, तो आपके माइंडसेट में चेंज आएगा, माइंडसेट में चेंज आएगा तो वो ट्रेड में दिखेगा, ट्रेड में दिखेगा तो इमोशंस जब आते हैं, ट्रेड गलत ही होता है। सागर, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes. आर यू गेटिंग? Yes, yes. ओके, अगर अभी आप कुछ कंसिस्टेंटली कितने महीने से प्रॉफिट कर रहे हो? हाँ, मतलब मैं जब भी ट्रेड लिया हूँ, मोस्टली मैं प्रॉफिट में ही लिया हूँ, बट यही कि बस मैं ट्रेल नहीं कर पा रहा हूँ। Okay, Eknath, you want to add anything? मैं एक ऐड करना चाहूंगा। अगर जो मंथली सैलरी है उतना अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है मंथली, तभी आप वो सोचो। और ऐसा खाली 1 महीने में नहीं, एटलीस्ट कंसिस्टेंटली 6 महीने में आना चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड। ओके, ओके। तो अगर आप कंटिन्यूअसली 6 महीने ऐसा कर पा रहे हो, अपनी सैलरी को आप निकाल पा रहे हो, तो देन यू कैन थिंक ऑफ। बट अगेन आई विल टेल यू, आपको बैकअप होना चाहिए, क्योंकि नॉट नेसेसरीली अगर आपने 6 महीने पूरा प्रॉफिट कर लिया, तो एक आधा महीना ऐसा आ सकता है कि आप जब लॉस में जा सकते हो, तब वो आपके साइकोलॉजी को हिलाना नहीं चाहिए। गुड। और अभी जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो थोड़ा अलग रहता है। जब फुल टाइम में आप पूरे दिन देखते हैं ना, तब अलग रहता है। परफेक्ट, ये भी पॉइंट वैलिड है, क्योंकि वो मैं एकनाथ के मुंह से बताना या फिर सुनाना चाहता था। क्योंकि सागर, क्या होता है जब आप बाकी का काम करते हुए, ऑफिस करते हुए कर रहे हो ना, तो यू हैव लिमिटेड एक्सेस और यू हैव लिमिटेड योर एक्टिविटीज इन द ट्रेडिंग, एक्सपेक्टेशन आल्सो लिमिटेड, वो सब लिमिटेड रहता है। जब आपको लगने लगता है कि मैं पैरेलली इतना कर रहा था, अभी तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, राइट, मुझे और ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर मुझे तो अभी सब मार्केट समझ में आ रहा है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मार्केट वेरी वेल, एंड दैट अर्लियर रिजल्ट वाज पार्ट टाइम, तो फुल टाइम में मुझे ज्यादा आना चाहिए। या फिर कुछ दिनों में समटाइम्स यू आर नॉट अलाइन टू द मार्केट, तब विदाउट ट्रेड भी आपको रुकना आना चाहिए, जो बिकॉज यू आर ऑक्यूपाइड इन जॉब अपने आप होता रहता था। करेक्ट, एवरीडे ट्रेड नहीं मिलेगा। और अपने को लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा भी पता चलने लग गया है। करेक्ट, लेकिन रियलिटी में अपने को बहुत कुछ पता नहीं रहता है। मार्केट खुद सिखाता है। ओके, बड़े से बड़ा ट्रेनर भी आपको आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है अपने आप में। परफेक्ट, स्ट्रेटजीज 100 अलग अलग स्ट्रेटजीज मिलेंगी आपको, अगर आप खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। जो एग्जाम्पल हम लोग बार बार देते हैं, घोड़े को पानी तक लेके जाया जा सकता है, पीना घोड़े को खुद पड़ेगा।
राइट। रास्ता दिखाया जा सकता है लेकिन उस रास्ते को चल के मंजिल को खुद ही पाना पड़ेगा। ओके, आपके बिहाफ पे कोई नहीं चलेगा, आप ही को चलना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई, इसीलिए तो मार्केट चलता है कि even though there are so many systems, so many defined rules होते हुए भी अगर सेम सिस्टम, there was one, मेरे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, देयर वाज कि एक ही सिस्टम अराउंड 100-200 लोगों में उन्होंने सेम सिस्टम को फॉलो करने के लिए दिया था। स्टिल देयर वर लॉट ऑफ पीपल डिफरेंट रिजल्ट्स। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लॉस कर गए, कुछ लोगों ने हाई मोर देन एक्सपेक्टेड उन्होंने प्रॉफिट करके दिखाया, कुछ लोग मतलब इन बिटवीन क्विट कर गए। सो दिस इज ऑल बिकॉज even though there was a same strategy, same defined rules, everything was given to different people, the result was completely different. Okay, that is why the market runs. So it all depends on the psychology. Let Okay, us go to the charts before we conclude the session. yes, दिख रहा है चार्ट सबको? hope I have answered everybody's question. Any doubts left out other than charts, other than fear of missing out, greed, profit में रुक नहीं पा रहे हैं, ट्रेंडिंग डे, वो सारी चीजें हो गई। book profit on trending day, that we will take. Anybody any question is left out before proceeding? मैडम आपने अभी बोला ना कार लेना है तो वही कार दिखती है, तो पेट्रोनेट एलएनजी मैंने स्टॉक लिया है, वही दिखा पहला। वो मैंने ये करके रखे हुए, दिखा है क्या कुछ अच्छे स्टॉक्स जो अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए लग रहे हैं? सो आई हैव मार्क्ड इट, फ्लैग लगा के रखा हुआ है। Zydus Life Science is given a breakout, वीकली ब्रेकआउट है अच्छा खासा, एंड मंथली आल्सो इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ वन लेवल। तो वो वैसे सारे स्टॉक्स थोड़ा मैंने ये करके रखे हुए हैं। एक्साइड इंडस्ट्री छोटा स्टॉक है, अभी रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम विथ गुड वॉल्यूम, लुकिंग गुड। लेट अस सी वो कैसे ये करेगा। ओके, सो नाउ लेट अस सी। सबसे पहले इफ आई से इन्वेस्टर्स के लिए अगर मैं बोलूं, अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो विच आई एम इन्वेस्टमेंट के लिए मैं फॉलो कर रही हूँ। यू सी whenever the trade is coming near and giving a price action, it is giving very good returns. आप अगर देख रहे हो वीकली में, आई कैन शो यू लॉट ऑफ स्टॉक्स दैट आर वीकली में जब भी लेवल के पास आए हैं उसके बाद में अगर आप ये वाला जो रैली मिस भी कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, वेट फॉर इट टू गिव यू अ गुड एंट्री पॉइंट। ओके, सो वीकली में इन्वेस्टमेंट का अगर आप देखते हो तो आई कैन दिस इज ऑन पेट्रोनेट एलएनजी इज ऑन मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है, दैट्स व्हाई इट हैज कम इनटू द रडार। ओके, सो यहाँ पे इसने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, तो अभी अगर ये ब्रेक करेगा तो अच्छा एक मोमेंटम मुझे वहां से मिलेगा। दिस इज अगेन मंथली टाइम फ्रेम पे नवीन फ्लोराइन हैज गिवन अच्छा खासा पियर्सिंग करके अपने लेवल पे आके पियर्सिंग करके मूव कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट के हिसाब से दिस इज वन मोर स्टॉक दैट आई विल बी लुकिंग, सन फार्मा ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई नाउ। सो ये वाला जो रेजिस्टेंस था कब का, अप्रैल 2015 का रेजिस्टेंस है, वहां पे आके वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज इंडिया मार्ट, दिस इज बिकॉज it has taken support from 0.618. if you see there is one big rally, उसके बाद में एक नीचे आया है 0.618 से ऊपर जा रहा है, वहां से आके एक हायर लो करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मंथली में, एंड वीकली में it has taken support from our level, that's why it has come into the radar. Okay, so this is how you investment के पर्पज से अगर देख रहे हो लॉन्ग टर्म कुछ महीनों के लिए अपना इंडिया का अच्छा खासा मूवमेंट हम अभी
अच्छा और भागेगा मार्केट। ओके अगर आपको उसमें अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, डोंट मिस देम एंड ट्राई टू विथ अच्छे प्राइस में एंट्री पॉइंट मिल रहे हैं। हाँ 5,000 10,000 जो भी आपको दिख रहा है वो इन्वेस्ट करो। ओके so it will give you fabulous return in coming some years. Okay, that is for sure. And if you see Adani Port also, if you see on a monthly time frame how beautifully it has taken support here. Okay, अभी उसने मंथली में ब्रेकआउट दिया है, एक फ्लैग यू कैन से फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। अगर ये मुझे अभी कुछ लोगों को सवाल रहेगा कैसे एंट्री करना है क्या, अगर ये टेस्ट करने के लिए ये लेवल पे आएगा तो दैट विल बी माय मोर बिग चंक, वहां पे एंट्री होगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा 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 बाय करते रहेंगे। ओके सो अगर आ रहा है इस लेवल पे, अगर मुझे एंट्री मिल रहा है तो दैट विल बी द बिगर चंक आई वुड बी बाइंग हियर। ओके क्यों, टेल मी क्यों? टेस्ट करने आएगा। परफेक्ट, ब्रेकआउट टेस्ट ओके करने आएगा। ब्रेकआउट टेस्ट करने आएगा तो फिर वहां पे वापस नहीं आएगा, वो वहां से अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड पे मिलेगा मुझे। ओके सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट लुकिंग एट द चार्ट्स। ओके सो इसका क्या हो गया, सेम मंथली पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है बार बार, सो दैट्स व्हाई ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर इन द लिस्ट। सी वीकली टाइम फ्रेम पे सीमेंस, बोलो ये वाला लेवल मार्क दिख रहा है किसी को 3468, इट इज ऑलरेडी मार्क्ड राइट। उसके ऊपर से अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये हाई छोड़ दो, अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, अराउंड 600 700 पॉइंट्स रैली मिली हुई है उसके ऊपर। तो इन फ्यू वीक्स 1.5 months something, so that is how it works beautifully. You need to believe it and you need to go and back test it, see it, तभी आपको उसमें अच्छा खासा ये मिलेगा। okay so now let us go to Nifty and Bank Nifty. Bank Nifty And again the capital will be generated from trading, but wealth will be generated from investment. yes, आप किसी को भी देखो बड़ा वो आदमी हुआ है जिसने इन्वेस्टमेंट करा है। ओके वेल्थ विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग से आप कैपिटल जनरेट करोगे, खर्चे निकाल के आप इन्वेस्ट करते जाओगे। ओके सो जितना भी आपका पोर्टफोलियो रहेगा यू कैन अगेन प्लेज इट एंड यूज इट फॉर ट्रेडिंग एज वेल। जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा वो आपको प्लेज करके आप ट्रेड कर सकते हो। होप ऑल ऑफ यू नो दिस राइट। जो प्रॉफिट आप निकाल रहे हो उसको इन्वेस्ट करते रहो और उसको प्लेज करके उसी में से ट्रेड करते रहो, तो इट विल इंक्रीज। वो जो प्रॉफिट आएगा, मार्केट तो अगर नीचे भी आ रहा है तो थोड़े टाइम के लिए आएगा फिर ऊपर जाएगा। कोरोना में 7,000 आए तो लोगों ने तो 2,000 3,000 के भी टारगेट दे दिए। 7,000 से 21,000 3 साल में, 21 तो 22 हो जाएगा अभी। सो सी हाउ मच बिग रैली मार्केट हैज गिवन। जीरो तो कभी नहीं होने वाला। एंड व्हेन इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन एनी स्टॉक्स, लाइक कुछ स्टॉक्स हमने ऐसे एक थोड़े दिन में बुक किए, दे आर ऑलरेडी डबल्ड, लाइक PFC हो गया था, कुछ अलग और बहुत सारे स्टॉक्स थे जो ऑलरेडी डबल हो गए थे। तो हमने क्या करा कि 50% बुक कर दिया। तो इससे मेरा क्या हो गया बताओ? इन्वेस्टमेंट हैज बिकम रिस्क। कैपिटल निकल गए। कैपिटल निकल गया। अभी जो बचे हुए हैं वो सारा मेरा जितना भी जाएगा वो बोनस ही है। That Right. will give you a relief of psychology. How many of you remember I had been keep telling PFC, RECL Limited and DLF, ये सारी चीजें जो बहुत टाइम का जो ब्रेकआउट दे रहे थे। If I show you PFC, you will understand.
वो बहुत लंबे टाइम का ब्रेकआउट दे रहे थे. आई वाज अगेन एंड अगेन टेलिंग दैट. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर ये वाला लेवल था जहां से ये ब्रेक कर रहे थे. लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट था, राइट? अराउंड अप्रैल 2017 का ब्रेकआउट यहाँ पे. सॉरी, दिस वन 154 मार्क है. दिस ये वाला देखो 2010 का ब्रेकआउट है, राइट? तो ये तो यहाँ से ही जब से ये कर रहा था तो आई केप्ट ऑन टेलिंग. और हमने वो डॉक्टर साहब को भी बोला था, बट डॉक्टर साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो रुक नहीं सकते. उन्होंने साइकिलिंग नहीं करा. And see, from 154 levels, the stock went to 408. हुआ कितना टाइम हो गया गाइस? तो अभी जो ऊपर के जो 50% स्टॉक्स है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दो. अपना कैपिटल आपने निकाल लिया, राइट? वो आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दो, वो मेरा नहीं है. So will it create wealth? Definitely, ma'am. Same thing I'm following. Perfect. Okay, this is how you need to trade. This is how you need to keep your mindset. मेरा कैपिटल निकल गया, वो जो प्रॉफिट दिख रहा है वो मेरा No, नहीं है. There again your mindset psychology will play a role. उसमें फिर भी कुछ भी ऊपर नीचे डिपा रहे ना तो आपको गया 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 अभी भी निकलना चाहिए, अभी आना चाहिए, वो सब अपने आप निकल जाएगा. जो चीज इन्वेस्टमेंट के लिए है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है. उसको वीकली मंथली टाइम फ्रेम पर ही देखना है. डोंट गो फॉर वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम. अभी छोटे मोटे डिप्स में उसमें अपना साइकोलॉजी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है. इसको इतना तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं. अभी कितने लोग मैजिक बैंड को फॉलो कर रहे हैं? सब भूल जा रहे. ओके, सो दिस इज इवन RECL लिमिटेड. आई थिंक NTPC भी था. सी, एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने यहाँ पे इस लेवल पे 167 लेवल्स. इफ यू सी इट वाज ट्रेडिंग ये वाले टाइम से अराउंड 2010 का लेवल उन्होंने ब्रेक किया था. सी कब से 167 से अभी कितना ट्रेड कर रहा है. हाउ आई हैव बीन टेलिंग अबाउट दीज स्टॉक्स अगेन एंड अगेन इन MPC एंड ऑल. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव फॉलोड, बट दिस इज 168 लेवल से 436 लेवल हो गया. डबल आपका कैपिटल फ्री हो गया, बेटा ज्यादा हो गया. सो ट्राई टू फाइंड आउट सच स्टॉक्स जो बहुत टाइम से कंसोलिडेट है या फिर बहुत टाइम से एक लेवल पे है, वहां से ब्रेकआउट दे रहे हैं. दे टेंड टू गिव यू अ रैली. और ये तो गवर्नमेंट स्टॉक्स के लिए तो मोदी जी ने भी बोला था, गवर्नमेंट स्टॉक खरीदो स्टॉक मार्केट वालों के लिए. ओके, सो sorry. Okay, so now let us go to Nifty and Bank Nifty. Nifty Bank Nifty अभी उसको कोई बताने की कोई ये नहीं है. और मैक्सिमम लोग 3 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं. करेक्ट एवरीवन? Me in 5 minutes. Bank Nifty. ठीक है, आई विल टेल यू. ये रैली हुई है, बराबर है. हाउ द कैंडलस्टिक आर. एक रेंज के बाद में ब्रेकआउट हुआ, फुल कैंडल है गाइस. आर यू सीइंग इट? एंड Yes, सी ma'am. द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ एवरी कैंडल. जब तक ये फिनोमिना चल रहा है ट्रेड में बने रहना है. जैसे ही कैंडल का उल्टा हो गया या फिर वॉल्यूम कम हो गया, डाई हो गया या फिर रेंज में चला फंस गया, तो ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन बायर को निकल जाना चाहिए. Yes, then you start trailing with very कैंडल टू कैंडल ट्रेड कर, मतलब
ट्रेलिंग चालू कर सकते हैं, सो दैट विल इलिमिनेट द फियर ऑफ मिसिंग आउट होल रैली या फिर बुकिंग अर्ली। वो सब जो क्वेश्चंस या फिर जो हमेशा मंडराते रहते दिमाग में, वो अपने आप कम हो जाएंगे। Whatever is time frame, जब तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कैंडल फुल फॉर्म हो रहा है, जैसे एक भी विक दिखा ना तो समझ जाना है कि वहां से सेलिंग आ रही है। एक भी कैंडल में अगर विक दिखने लग गया, इसका मतलब सेलर इज गेटिंग इन, ही मे ब्रिंग द रैली डाउन और हॉल्ट कर सकता है। तो आपको बहुत कॉशियस हो जाना पड़ेगा। जब तक फुल कैंडल है कोई टेंशन नहीं लेना है। Will this solve your problem of Anxiety. riding the trend? Yes. Okay, everyone? Yes, Second, madam. एंट्री गलत हो, ऊपर जाके एंट्री हो रही है, ठीक है। इतना बड़ा रैली हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया। टेक इट whatever the time frame, don't go on 3 minute or whatever it is। आपने ये वाले कैंडल में एंट्री कर रहे हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, एग्जिट कहाँ पे होगा। परफेक्ट। फर्स्ट एंट्री के टाइम पे ही एग्जिट का पता होना जरूरी है। अगर मैं इसमें फंस गया तो मुझे कहाँ पे निकलना है। Where am I going to exit if I am entering in this candle? So there is So, a say, if you know the stop loss, you know the trade. तो आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो आपको मालूम है ये रेंज ब्रेक हो गया तो आपको निकलना ही है, राइट। यहाँ पे अगर एंट्री कर रहे हो तो कैंडल एक तो अराउंड 17-18 पॉइंट्स का कैंडल बन गया है, ओके। तो वॉल्यूम भी हाई है। सो एक तो वॉल्यूम है, टॉप पे कैंडल है, दो इट इज अ फुल कैंडल, इट कैन बी अ बाइंग क्लाइमैक्स, ठीक है। ठीक है, आप अगर एंट्री कर भी रहे हो ऐसा इतना रैली होने के बाद में, तो आपका क्वांटिटी कैसे होना चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम क्वांटिटी होना चाहिए, बिकॉज रैली के बाद में एंटर कर रहे हो आप। खाना सब, पार्टी सब खत्म हो गई है, सिर्फ डेजर्ट का सेक्शन बचा हुआ है, तब आप एंट्री कर रहे हो शादी में। बर्तन मांजने पड़ फिर सकते वो भी हैं। खत्म हो गया तो बर्तन मांजने पड़ सकते हैं। So you are entering after one big rally. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसी टाइम में आपको पोजीशन साइजिंग बहुत कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी द रैली हैज हैपेंड। इवन इफ इट गोज फार अवे, you if you are entering, enter it with a small quantity. Which even if it goes against or which Against you, if it's that stop can loss, you don't have to feel bad about it. जब भी कोई रैली के बाद में आप मार्केट देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है अरे और जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बिलीव मी, मार्केट स्ट्रेट लाइन में एक रैली दे रहा है तो उसको थोड़ा बहुत उसको पचाना ही पड़ता है। अगर एक ही बड़ा कैंडल आ रहा है तो उसको भी पचाना पड़ता है। How many of you follow 23 Bollinger Band 23? 20,3 जो भी जिसको भी फियर ऑफ मिसिंग आउट होके लास्ट एंट्री कर रहे हैं ना, वो उसको चालू करो। अगर उसको क्रॉस करके कोई कैंडल क्लोज हो रहा है तो रैली का कंटिन्यू होना डाउटफुल रहेगा, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी एक्सटेंडेड। टू मच स्ट्रेच होने के बाद पुल बैक होने का डर ज्यादा हो जाता। आप खुद ही सोचो ना, कोई है जो यहाँ से बैठा हुआ है, ओके, उसको ये वाला समझ में आ गया, मॉर्निंग स्टार एंड ऑल, आई विल रिमूव दिस इंडिकेटर एज वेल, ओके। वो यहाँ से बैठा हुआ है, उसको पता है कि अभी ये मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा, तो एक इतनी बड़ी रैली आने के बाद क्या वो रुकेगा क्या? प्रॉफिट बुक, उसको भी कहीं पे ये लगेगा ना, तो वो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। और वो वहां पे एक रेजिस्टेंस भी है पहले वाला,
You just Sure. see that. So wait for it to digest. फिर वो एक ऐसा कैंडल बनाएगा एक रैली के बाद में. अगर ये एक ऐसा कैंडल बना रहा है तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी क्लियर मिल रहा है ना गाइस. तो इतनी घाई क्यों इसी रैली में लेना है, इतनी घाई क्यों करना है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सी इन दैट. और ये मार्केट नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे आया, इसको फॉलो अप नहीं मिला, राइट. वॉल्यूम भी कम हो गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे ऐसा दिखाया कि अच्छा वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे नीचे जाएगा. एक लेवल के पास में आके ये हाई वॉल्यूम कैंडल था, उसी के पास में आके मार्केट रुक गया. और इमीडिएटली इसने क्या किया, प्राइस एक्शन में देखो, एंगल्फिंग कैंडल बनाया. डोंट लुक एट द time frame, I am telling you, it can be any time frame. So there was a big volume, there is no follow up. When this volume gets broken, ये वाले कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा मार्केट में, बोलो मुझे. यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है, एक्सेलेंटिंग, करेक्ट, उनके ऐसे लग जाएंगे. वहां उन लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, वो लोग बाय करना चालू करेंगे, तो उसके बाद में एक मूव आना बनेगा. ट्राई टू लुक एट द मार्केट लाइक दिस. ओके, एनीवन, एनी डाउट विद दिस? 5 minutes. मॅम मार्केट संपल्यानंतर हे सगळं लक्षात येतं, पण जेव्हा मार्केट चालू असतं तर तेव्हा ह्या मायन्यूट गोष्टी माहित असून देखील लक्षात नाही. तेच प्रॅक्टिस वरती मेसेजिंग युअर माइंड. कॉन्शियस एफर्ट, अगेन टेल यू, कॉन्शियस एफर्ट घ्यायला लागेल. थोडे दिवस एव्हरी ट्रेड घेताना कॅन्डल बरोबर आहे का, व्हॉल्यूम बरोबर आहे का, थोडा दिवस होईल, 1-2 मिनिट उशीर होईल एंट्रीला, थोडा दिवस आपल्याला कमी पॉइंट्स मिळतील. But it will give a message to your mind that you need to be disciplined. This is your business. This is a serious business. I'm not here to play or risk myself unnecessarily. So I need to look at all these points. ज्या वेळेला कंटिन्युअस एफर्ट होतो ना, त्या वेळेला तो आपोआप काम करायला चालू करतो. Okay, it will take little bit time. You need to put conscious efforts for that. Okay, any doubts again? How many of you feel कि ऐसे सेशंस सबके साथ होनी चाहिए? येस. येस ऑफ कोर्स. सबको मोटिवेट करो. इतने 126 लोगों का ग्रुप है, हार्डली 17 लोगों ने रजिस्टर किया था, 11 लोगों ने अटेंड किया है. सो ग्रुप में सबने लिखना है. नेक्स्ट अगेन वी विल प्लान 15 डेज में, वी विल प्लान अगेन वन मोर सेशन. एवरीबडी शुड ज्वाइन. सो ऐसा कुछ लिखना है. It will refresh everyone and group energy also will help everyone to achieve more. Okay, so hope I answered everybody's question. किसी का तो नहीं रह गया ना? Yes, answer. Anyone, anything left out? I had noted down accordingly. I had taken. Anything still left out? Feel free, open, put it in the group. That और also नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन सेशन होगा तो कम प्रिपेयर्ड विथ योर क्वेरीज, valid so queries that so that you we can take discuss and everyone can get benefit of it. मैक्सिमम एडवांटेज आपको सेशन का मिलेगा. ओके, कम प्रिपेयर्ड विथ फुल ऑफ योर क्वेरीज. ओके, so shall we wind up the session? Thank you everyone for joining in. Thank you everyone. Thank for you. Thank you. मॅम. to our Papa. Thank you. Good night. Yeah. Thank you and good night. Hope Good night. it add value to your time. Thank you. Yes. थँक्यू मॅम. Mm. Thank you everyone.